پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اختلافات۔ ترجمان بلاول بھٹو زرداری بیرسٹر مرتضی وہاب کا اہم بیان کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور فاروق کے درمیان نہیں، نون لیگ کی حکومت کے ساتھ اختلاف ہیں۔ نون لیگ کے ساتھ حمایت کے وقت طے ہوا تھا پی ایس ٹی پی مل کر بنایا جائے گا۔ کراچی کے لیے وفاق کو 10 ارب منصوبے تجویز کیے گئے تھے، ابھی تک کراچی کو 1 روپیہ بھی نہیں ملا۔ تفصیلات جانیں گے عاجز جمالی سے۔ جی عاجز، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی دیکھیں، یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت کے درمیان جو تنازعات، اختلافات اور چیمہ گوئیوں سے بات اب رہنماؤں تک پہنچ گئی ہے۔ اب اوپنلی رہنما یہ بات کہتے ہیں کہ اختلافات ہیں۔ یہاں پہ آج بلاول بھٹو زرداری کے بیرون ملک روانگی کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے معاملے پہ بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان اور میئر کراچی کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وفاق سے کوئی اختلاف نہیں، البتہ نون لیگ کی حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی کا اختلاف ہے، کیونکہ حمایت کے وقت جو معاملات طے ہوئے تھے ان پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومتیں ہیں، لیکن چھوٹے صوبوں کو ساتھ لے کر نہیں چلا جا رہا ہے۔ نون لیگ جوڈیشل کمیشن میں حکومت نے 2 نمائندوں کا وعدہ کیا تھا، اس سے مکر گئی ہے۔ پی ایس ڈی پی کے متعلق جو طے ہوا تھا کہ ساتھ مل کر منصوبے بنائے جائیں گے، اس سے حکومت مکر گئی ہے۔ کراچی شہر کے لیے وفاق کو 10 ارب روپے منصوبوں پہ دینے کی تجویز تھی، کراچی کو ابھی تک 1 روپیہ بھی نہیں ملا ہے۔ لاہور تو لاہور ہے، لیکن ہر کوئی سادہ لاہور ہے، کراچی کے بارے میں ایسے کیوں نہیں سوچا جاتا؟ اس سے معاملات خراب ہو رہے ہیں، اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ کراچی میں پورے ملک کے لوگ بستے ہیں، وزیر اعظم صاحب سخاوت کو کراچی تک بڑھائیں، تو یہ صورتحال ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی دسمبر میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اس میں معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ جی عاجز جمالی، بہت شکریہ آپ کا۔ ضمنی بلدیاتی الیکشن میں کامیابی، پیپلز پارٹی پر اعتماد کا منظر۔ سٹی کونسل میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر اور نو منتخب چیئرمین یو سی 13 کرم اللہ وقاصی کا ووٹر سے اظہار تشکر۔ شہر کی بہتری کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنے کی دعوت بھی دے دی۔ تفصیلات جانیں گے شعیب مختار سے۔ جی شعیب، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں بلدیہ عظمیٰ کراچی میں پیپلز پارٹی کے نو منتخب پارلیمانی لیڈر کرم اللہ وقاصی کے ساتھ موجود ہوں۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کو سٹی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ضمنی بلدیاتی انتخابات میں یو سی 13 صدر ٹاؤن سے بھی آپ نے کامیابی حاصل کی، اور آج جو ہے آپ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں پارلیمانی لیڈر منتخب ہو چکے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے اس موقع پر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں رسپونڈ کیا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی پالیسیوں کو انہوں نے انڈورس کیا اور ہمیں دوبارہ بھاری اکثریت سے منتخب کیا۔ میری یو سی میں اسی ایک ہی ٹرن میں یہ تیسری مرتبہ ہے کہ یہ یو سی ہم نے جیتی ہے۔ یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے گراس روٹ پہ ڈیلیور کیا ہے۔ باقی جماعت اسلامی نے جو پٹیشن ڈالی ہے، الیکشن کے دن ان کی کوئی شکایت نہیں تھی، لیکن ان کے اندر ایک عادت ہے، وہ اپنی شکست تسلیم نہیں کرتے، تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے یہ پٹیشن، وہ اپنا شوق پورا کر لیں اور انشاءاللہ تعالی یہاں پہ بھی ان کو شکست۔ سر یہ بتائیں کہ تمام سیاسی جماعت پیغام دیں گے بلدیہ عظمیٰ کراچی میں جتنی جماعتیں موجود ہیں؟ تمام جماعتوں کو میں یہ پیغام دوں گا کہ عوام نے ہمیں اس کونسل میں کام کرنے کے لیے بھیجا ہے، قانون سازی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم ان کے مینڈیٹ کی ایک بھاری ذمہ داری لے کے اس کونسل میں آئیں، تو بجائے کونسل میں ہم لڑائی جھگڑے سے گریز کریں اور عوام کے لیے کام کریں، ان کو سہولیات پہنچانے کے لیے، کراچی شہر کو ایک ماڈرن شہر بنانے کے لیے قانون سازی کریں۔ ہم تو دعوت دیتے ہیں تمام جماعتوں کو، آئیں ہمارے ساتھ مل کر بیٹھیں، ٹیبل پہ بیٹھیں، بات کریں، اور بات چیت کے ہی ذریعے یہ دروازے کھلیں گے۔ اور جی بالکل، ان کی جانب سے بلدیہ عظمیٰ کراچی کی تمام جماعتیں جو اس وقت کونسل میں موجود ہیں ساتھ کام کرنے کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے، بلاول بھٹو کی قیادت میں ترقی کا مشن جو ہے جاری و ساری رہے گا۔ جی شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ کورنگی میں طویل دورانیے کے لوڈ شیڈنگ سے کاروبار بھی متاثر ہے۔
तवील बिजली की बंदिश से वेल्डिंग का काम भी ठप होकर रह गया। तफसीलात जानेंगे नमरा रियासत से। जी नमरा, बताइएगा। बिल्कुल जी, कराची का मौसम बदल गया। बल्दियाती इंतखाबात के बाद नुमाइंदे बदल गए, लेकिन उनके मसाइल जो कि तू हैं। जिस तरह से सबसे अहम मसला इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग का है, जो मौसम की तब्दीली के बाद भी जारी है, जिससे घरेलू सार्फिन के साथ साथ कमर्शियल सार्फिन, कारोबारी अफराद भी मुतासर होते दिखाई दे रहे हैं कि घंटों की तवील लोड शेडिंग से उनका काम जो है वो मुतासर हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते। बताइएगा कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है और काम किस तरह से मुतासर होता है? देखें, काम के टाइम पे लाइट तो बिल्कुल नहीं होती। सुबह हमारी दुकान 8-9 बजे खुलती है, तो हमारा दिन का सुबह का टाइम होता है काम का, तो लाइट बिल्कुल नहीं होती। काम के टाइम 5 से 6 घंटे लाइट चली जाती है, जिससे हमारे काम में बहुत बड़ा मसला हो रहा है। अच्छा, जब लाइट नहीं होती तो फिर लाइट का इंतज़ार करते हैं या बैटरी वगैरह जलाते हैं? नहीं, ये मोबाइल की टार्च वगैरह जला के गुजारा करते हैं, क्या करें, रोज़ी तो करनी है। अब लाइट के बगैर जितना हो सकता है हमारा, हम वो काम करते हैं, लेकिन लाइट ने बहुत मुतासर किया हुआ है। बहुत मसले हो रहे हैं कारोबार में, जो है ना, बहुत वो हो रहा है, तो परेशानी हो रही है। यकीनी तौर पर कारोबारी अफराद भी इससे जो है वो मुतासर होते दिखाई दे रहे हैं कि घंटों तवील लोड शेडिंग जब होती है तो कारोबारी औकात कार में उनको मसाइल का सामना रहता है। एलानिया के अलावा गैर एलानी लोड शेडिंग भी की जा रही है, जिससे भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद इन जो है वो मुश्किलात का सामना रहता है। जी आगे बढ़े और अब आपको बताएं अफसरान के तकर्रुर तबादले। फरहान अख्तर डिप्टी सेक्रेटरी जामियात बोर्ड तैनात कर दिया गया। सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको अपडेट करें, अफसरान के तकर्रुर तबादले हुए हैं। फरहान अख्तर डिप्टी सेक्रेटरी जामियात बोर्ड तैनात कर दिया गया। सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। फरहान अख्तर डिप्टी सेक्रेटरी जामियात बोर्ड तैनात। डिप्टी सेक्रेटरी जामियात बोर्ड एहसन रंधावा का तबादला कर दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल तालीम अल्ताफ़ अहमद सुमरो का भी तबादला कर दिया गया। अल्ताफ़ अहमद सुमरो मेंबर सूबाई इलेक्शन अथॉरिटी तैनात कर दिए गए। सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आपको अपडेट करें, सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल तालीम अल्ताफ़ अहमद सुमरो का तबादला कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नूरियो से, आगाह कीजिएगा। कि बिल्कुल 18 और 20 ग्रेड के 3 अफसरान के तबादले कर दिए हैं, जिसके महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने 2 अलग-अलग से नोटिफिकेशन कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक फरहान अख्तर को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा जामियात बोर्ड तैनात कर दिए, तो वहाँ से डिप्टी सेक्रेटरी जामियात बोर्ड एहसन रंधावा का तबादला कर दिया है। जैसे 20 ग्रेड के अफसर एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल तालीम अल्ताफ़ अहमद सुमरो का तबादला करते हैं, उनको मेंबर सूबाई इलेक्शन अथॉरिटी तैनात कर दिया। जिसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी महकमा स्कूल तालीम का पुलिस का जो अफसर का होता है वो खाली हो चुका है। जी आज़ाद नूरियो, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें। फरहान अख्तर डिप्टी सेक्रेटरी जामियात बोर्ड तैनात कर दिया गया है। सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अफसरान के तकर्रुर तबादले। फरहान अख्तर डिप्टी सेक्रेटरी जामियात बोर्ड तैनात। डिप्टी सेक्रेटरी जामियात बोर्ड एहसन रंधावा का भी तबादला कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला ने एक्साइज नारकोटिक्स में पुलिस मुद्दत ख़त्म कर दी है। आपको अपडेट करें, सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला ने एक्साइज नारकोटिक्स में पुलिस की मदद ख़त्म कर दी है। 4 इंस्पेक्टर समेत 24 पुलिस एहलकारों की खिदमत सिंध पुलिस को वापस। सूबाई वज़ीर ने कल महकमे का तारीफ़ी इजलास भी तलब कर लिया है। जी आज़ाद नूरियो, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर एक्साइज व नारकोटिक्स मुकेश कुमार चावला ने हवाले के बाद में साबिक़ सूबाई वज़ीर शकील इनाम के दौर में जो फैसले किए गए थे मंशा के खात्मे के हवाले से, इस हवाले से उस वक्त जो पुलिस की मदद हासिल की गई थी, लेकिन मुकेश कुमार चावला ने पुलिस की मदद जो है खत्म कर दी है। आज जो महकमा एक्साइज व नारकोटिक्स के सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम राजपूत ने बाकायदा तौर पर तहरीरी हुक्मनामा जारी करके जो सिंध पुलिस के 4 इंस्पेक्टर 24 एहलकार जो खिदमत हासिल की वापस सिंध पुलिस के सुपर्द कर दिए। साबिक़ सूबाई वज़ीर के दौर में जो फैसला किया गया वो फैसला खत्म करके नारकोटिक्स में नफरी क्लब के बायस पुलिस की मदद ली गई थी। पुलिस इंस्पेक्टर में अलग खान अब्बासी, अली मोहम्मद सुमरो, इस्माइल टिकर और वज़ीर इलाकों समेत दीगर 24 पुलिस के एहलकार भी शामिल हैं।
जिनकी खिदमत जो वापस सिंध पुलिस के सुपर्द कर दी गई, जबकि साइबर डीजी नार्कोटिक्स ओस्मान गनी सिद्दीकी ने ये इन पुलिस एहलकारों की खिदमत जो मंशात के खात्मे के लिए हासिल की थी, क्योंकि नार्कोटिक्स केस के बाद नफरी की तरफ थी, जिसके बाद जो इनके खिदमत ली गई। लेकिन जो आज जो है महकमा एक्साइज टैक्सेशन और नार्कोटिक्स ने इनकी खिदमत खत्म करके वापस पुलिस के सुपर्द कर दी, जबकि सूबाई वज़ीर एक्साइज टैक्सेशन नार्कोटिक्स मुकेश कुमार चावला ने कल जो है 2 बजे डीजीएस कम्प्लेक्स चौधरी रोड पर जो इनके दफातर है वहाँ पर महकमा एक्साइज टैक्सेशन और नार्कोटिक्स सरकार के खिलाफ की तरफ कर लिया है। जी, सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला ने एक्साइज नारकोटिक्स में पुलिस मदद ख़त्म कर दी है। आज़ाद नोड़ी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, सूबाई वज़ीर एक्साइज नारकोटिक्स मुकेश कुमार चावला ने महकमे का इजलास तलब कर लिया। इजलास में महकमे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। आपको अपडेट करें, सूबाई वज़ीर एक्साइज नारकोटिक्स मुकेश कुमार चावला ने महकमे का इजलास तलब कर लिया है। आज़ाद नोड़ी, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल बता चुका हूँ, शुरू कर दिए हैं, लेकिन कल जो है अपने महकमे का 2 बजे इजलास तलब कर लिया। इस इजलास में मजीद अमूर पर गौर किया जाएगा, लेकिन इस वक्त जहाँ अफसरान की उखाड़ पछाड़ की जा रही है वहाँ पर जो सिंध पुलिस की खिदमत हासिल की गई थी वो भी खत्म की गई है। और कल जो सूबाई वज़ीर एक्साइज टैक्सेशन और नार्कोटिक्स ने जो इजलास तलब कर लिया है, जिसमें डीजी एक्साइज टैक्सेशन नार्कोटिक्स डीजी जो नार्कोटिक्स ये दोनों डीजी शरीक होंगे। इसके अलावा तमाम डायरेक्टर्स को भी इस इजलास में शिरकत के लिए मदऊ कर दिया गया है। जी, इजलास कल 2 बजे डीजी कम्प्लेक्स आई चंडीगढ़ रोड में होगा। साथ नोटियो हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रिटेलर्स ने चीनी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद से इनकार कर दिया। प्रॉफिट मार्जिन 8 रुपये फ़ी किलो करने का मुतालबा कर दिया। काविश मेहमन की रिपोर्ट देखें। कमिश्नर कराची ने अवाम को रिलीफ दिया, लेकिन रिटेलर्स रिलीफ की राह में रुकावट बन गए। रिटेलर्स ने चीनी की सरकारी कीमत 125 रुपए तस्लीम करने से इनकार कर दिया। सदर ली मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन मोहम्मद खत्री कहते हैं कि चीनी की फी किलो कीमत 130 रुपए किलो मुकर्रर की जाए। इखराजात बढ़ गए हैं, चीनी 125 रुपए किलो फरोख्त नहीं कर सकते। कमिश्नर कराची साहब से कि ये जो प्रॉफिट मार्जिन है 3 रुपए पर केजी, ये बहुत कम है, क्योंकि इसके ऊपर हमें जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है। अब आप एक अगर कागज़ की थैली ले लें तो कम से कम 8-10 रुपए की पड़ती है, मतलब 5 केजी की अगर वो थैली 3 रुपए पर केजी तो खर्चा आ गया, या 2 रुपए पर केजी खर्चा आ गया। फिर शॉपर है, इसके अलावा लोग हैं हमारे पास जो काम करने वाले हैं, उनकी दिहाड़ियाँ हैं। शहरियों का शिकवा है कि कमिश्नर कराची ने रिलीफ दे दिया, मगर रिटेल में चीनी ताहाल महंगे दामों मिल रही है। हुकूमत का खैर कमिश्नर साहब का बहुत अच्छा इकदाम है, इससे माशाल्लाह महंगाई तो कम होगी, लेकिन वो जो इलाके में बेचारे फ़रोख्त कर रहे हैं वो महंगी फ़रोख्त की जा रही है। 125 रुपये के हिसाब से जैसे कि और मज़ीद अगर कम हो जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि महंगाई इतना ऊपर गया है तो लाजिम बात है थोड़ा उनको भी कुछ करना है कि नीचे आना चाहिए कम महंगाई, कि हम लोगों को भी सहूलत ही मिल जाए, आवाम को सहूलत ही मिल जाए। ऐसे तो 1 महीना या 1.5 महीने के लिए रेट नीचे ऊपर हो जाते हैं, फिर रेट ऊपर हो जाते हैं। शहरियों ने कमिश्नर कराची से मुतालबा किया है कि चीनी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अली के साथ काविश मेमन, सिटी 20। जमात इस्लामी कराची के अमीर मोहम्मद ज़फ़र खान कहते हैं, ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात पर शब खून मारा गया। जमहूरियत का राग इलापने वालों ने धांधली के जरिए जमात इस्लामी को हराया। कराची वालों ने जमात इस्लामी को वोट दिया, मैंडेट पर कब्जा होने नहीं देंगे। सईद नुमान गुल की रिपोर्ट देखें। अमीर जमात इस्लामी कराची ने सूबाई इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों ले लिया। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। इदारा नूर हक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद ज़फ़र खान बोले कि 14 नवंबर को तारीखी धांधली की गई है, जिसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में पिटीशन दायर की है। 14 तारीख को इलेक्शन थे, रात 1:30 बजे तक कमोबेश 8 साढ़े 8 घंटे तक नताइज जारी नहीं किए गए। पीपल्स पार्टी को जाली तरीके से जीता हुआ दिखाया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि MD कैट का टेस्ट मजाक बन गया है। मैंडेट पर कब्जा करने वाले जाली लोग कौम के मेमारों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। आज तक इस बात का ऐलान नहीं हुआ कि मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट के लिए टेस्ट जिसको रिकंडक्ट होना है कब होगा, तारीख का ऐलान नहीं हुआ। आप कौम के मुस्तकबिल के मेमारों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं? मोहम्मद ज़फ़र खान ने मुतालबा किया कि MD कैट में पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21।
शहर कायद में बिजली और गैस के मसाइल थम ना सके। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेयरिंग के दौरानिये में इजाफे से आवाम की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। रात भर गैस की बंदिश ने भी शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। सईद नुमान गुल की रिपोर्ट देखें। कराची वालों को बिजली और गैस के मसाइल से निजात ना मिल सकी। लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात भी बढ़ा दी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा हो गया, जबकि रात के औकात में गैस भी नायाब हो गई। मुश्किलात से दो चार शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि कई कई घंटे बिजली गायब रहती है और गैस रात में जाने के बाद सुबह आती है। रात में ठंडा खाना खाने पर मजबूर हैं। गैस की वजह से समय बड़ी परेशानी है कि ना रात को खाना गर्म मिलता है, ना सुबह में नाश्ता मिलता है। रात को जाती 9 बजे, सुबह में आती है 7 बजे। तो कहाँ से बंदा नाश्ता करेगा, कहाँ से खाएगा, कहाँ से पकाएगा। और लोड शेडिंग की ये है कि 3 घंटे की टाइमिंग, उससे अलावा भी जो है ना 12 घंटे से अलावा भी लाइट जाती है। कोरंगी, लांडी, शाह फैसल कॉलोनी, मलिर अख्तर कॉलोनी, सुरजानी टाउन और न्यू कराची के इलाके मुतासिर हैं, जबकि नॉर्थ नाजमाबाद, पाक कॉलोनी, पटेल पाड़ा, जहांगीर रोड और दीगर इलाकों में भी घंटों घंटों की लोड शेडिंग की शिकायत हैं। शहरियों ने बिजली और गैस की बंदिश के दौरान ये में कमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। पुलिस कार्रवाइयाँ या मुबैना रिश्वतखोरी का बाजार गर्म। शहर में एलपीजी का कारोबार करना मुश्किल हो गया। एलपीजी इंडस्ट्री एसोसिएशन के नायब चेयरमैन तैमूर मलिक कहते हैं कि एलपीजी फरोख्त करने वालों से रिश्वत तलब की जा रही है। अयाज राना की रिपोर्ट देखें। शहर में गैर कानूनी एलपीजीज की दुकानों पर कार्रवाइयां सवालिया निशान बन गईं। कराची पुलिस रिश्वत जैसे संगीन इल्जामात की जद में आ गई। एलपीजी इंडस्ट्री एसोसिएशन के नायब चेयरमैन तैमूर मलिक कहते हैं कि गैर कानूनी काम करने वाले हों या कानूनी तरीके से काम करने वाले, सबसे रिश्वत तलब की जा रही है, जिसका खमियाजा शहरियों को भुगतना पड़ता है। जो भी हमारे इदारे हैं उन्होंने आके रिश्वत का बाजार गर्म कर दिया और अंत मचा दिया, और वो आके दुकानों से रिश्वत ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। अब लाजमी बात है, जब इदारे ही पैसे लेंगे तो फिर हमारे शॉपकीपर भी इतने अच्छे नहीं है, उन्होंने एंड यूजर से ही ये पैसे निकालने। एलपीजी फरोख्त करने वाले दुकानदार बोले, महंगी गैस फरोख्त करने की एक वजह डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। ये जो क्रॉस फिलिंग हमें मिल रही है उनका रेट हाई है। क्रॉस फिलिंग से जब हमें हाई रेट मिलेगा तो आगे भी जो है बाज़ार में भी मार्केटिंग भी ऐसे करनी है, तो इसकी ये वजूहत हैं। और इसके अलावा मतलब कि बतखोरी वाला निज़ाम भी जारी है, बाज़ार गर्म है तो वो भी लेन देन करने पड़ते हैं। एलपीजी एसोसिएशन ने कमिश्नर कराची से अपील की है कि सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन काशिफ के साथ अयाज राना, कराची। अब आपको बताएं, एनईडी यूनिवर्सिटी में केयर फेयर का इनेकाद किया गया, जिसमें 40 से ज़ायद मुकामी और बैनुल-अक़वामी इंडस्ट्रीज़ ने शिरकत की। वाइस चांसलर सरोश असमत लोधी का कहना था कि केयर फेयर तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। फरहान खान की रिपोर्ट देखें। एनईडी यूनिवर्सिटी में सजा कैरियर फेयर 2024 का मेला। मुकामी और बैनुल-अक़वामी इंडस्ट्रीज ने स्टॉल्स सजाए। वाइस चांसलर एनईडी यूनिवर्सिटी सरोश हशमत लोधी ने कहा कि कैरियर फेयर के दायरे कार को वसी किया है ताकि तलबा हर फील्ड का जायज़ा ले सकें। ये कैरियर फेयर का प्राइमरीली मकसद ये है कि जो इंडस्ट्री है वो यूनिवर्सिटी में आए और जो बच्चे एम्प्लॉयमेंट की तलाश में उनको फैसिलिटेट करें। एक फर्स्ट एंट्री लेवल इंटरेक्शन यहाँ हो जाए, फिर बाद में प्रोसेस आगे होता रहेगा। तो वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड एवेन्यूज़ फॉर आवर ग्रेजुएट्स एंड आवर